Is being recorded. So we'll come to verse 2 of Ishavasya Upanishad. हाँ, correct, correct. So basically, जो verse 2 and verse 3, they are applications of verse 1. हम्म. वर्स 1 में कहा गया है उसका एप्लीकेशन है. So verse 2 is like an encouragement for us who want to follow the verse 1, and verse 3 is like a warning to us who do not want to follow the verse 1. So verse 2, which we are doing today, it's like an uh, encouragement that if we follow the principle which is given in verse 1. What is verse 1? Ishavasha. Verse 1, what does it say? That everything Is Brahman. animate or inanimate which is within the universe is controlled and owned by the by Bhagwan, by Lord. And therefore one should accept only those things necessary for himself which are set aside as one's quota. And one should not accept other things, knowing fully well that to whom they belong. This is verse 1, basically, in summary. So, इसी वर्ष के बेसिस पे वर्स 2 है कि if we follow this Ishavasya principle, then what happens? So, I don't know whether we have um, any note or book in front of us. So, अनिल. जो आपने भेजा था वो मैंने खोल रखा है. okay, so we can read it. कुर्वन्न एवः कर्माणि जीजीविषे शतं समः इवं त्वायि नान्यथेतोस्त न कर्म लिप्यते नरे. दिस इज द वर्स. सो इसका अन्वय देख लेते हैं जरा सा कि क्या कह रहा है. कुर्वन्न, कुर्वन्न इज डूइंग कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली डूइंग समथिंग. कुर्वन्न. एंड ईवा इहा, ये ईवी ईएच ए ईवा इहा, दैट इज thus during the span of life. Karmani, that is work. Jiji Vishay, one should desire to live. Shatam 100. Sama. Shatam Sama is 100 years. Evam Twai Nanyathetostha. So, Evam is so living. Tyai into you, unto you. Na is no Anyatha alternative. Itaha, from this path. Asti, there is. Lipyate, can be bound. And Nare, unto a man. So, there is no alternative to this, right? Because all other alternatives bind a man. तो क्या कहा उसने कि doing continuously what has been said in verse 1, one can expect, one can desire to live for hundreds of years. And there is no alternative. That means this is an instruction basically. Actually, all Upanishads, here I must mention, are direct instructions. There is no if and but in Upanishad, right? Like we see in Gita, for example, Bhagwan takes the view, he always presents the options before us before he says that this is my opinion. If you would remember Gita, हम्म. भगवान ने कहा है, कई जगह पे हमने नोट किया होगा कि वो कहते हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं और इसका ये रिजल्ट होगा, ऐसा भी कर सकते हैं इसका वो रिजल्ट होगा, और मेरा मत ये है कि हमें ऐसा करना चाहिए. दिस इज हाउ भगवान हैज डेल्ट इन भगवत गीता. बट इन उपनिषद्स they are more direct. They straight away instruct that this is what should be done because there is no other option.
इसमें अदर ऑप्शन। सॉरी। मकरंद, इसमें हम वहाँ फोकस नहीं कर रहे हैं ये। जैसे हमारे पास दो ऑप्शन है इस संसार में जब हम आए हैं, या तो हम अम, यौगिक पाथ पे चले जाएं या ज्ञान मार्ग पे चले जाएं। अगर हम वहाँ उस मार्ग में नहीं हैं, तो अगर हम इस संसार में रह के हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम कर्म योगी रहें, कर्म में ही यस, बिना लिप्त किए हुए काम करते रहें, और उसी में वो 100 ईयर्स पता नहीं कहाँ से उन्होंने डाल दिया है। वहीं वहीं आ रहा है, वहीं आ हाँ, रहे, वहीं आ रहे, बिल्कुल आपने सही उसको कैच किया। हाँ, तो अगर हम इसको पूरे वर्ड्स को वैसे ट्रांसलेशन में देखें, सो ये कि वन में एस्पायर टू लिव फॉर 100 of years, 100 of years, if he continuously goes on working in that way. That way means the way which has been specified in verse 1. ठीक है? हम्म, For that sort of work will not bind him to the law of karma, जो आपने कहा। हाँ, If you work in that way, that sort of work will not bind him to the law of karma. And there is no alternative to this way for a man. राइट। Basically, when we work in that way, there is no entanglement with the material world. See, as you have pointed out, Prabhat, there are two words only, mota moti. One क्या is है? material world, one is spiritual world, करेक्ट, करेक्ट। right? So, since we are in material world, we can do any things only which can be done in material world, या right? Which can we can do material things, and even if we don't want to do something, something will keep on happening from us. जिंदा रहने के लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ ना कुछ तो कुछ करना ही करना पड़ेगा। पड़ता सांस तो लेनी ही पड़ेगी है। करेक्ट, करेक्ट। और जागना भी पड़ेगा। तो बट इफ वी आर डूइंग इट with a consciousness of Ishavasha, then these things, these karmas are not binding us. We will come to that once again. We will review what has been said about this in Srimad Bhagavad Gita. हम्म। नहीं, वहां तो भगवान ने कहा ना अर्जुन से, वो जो 66 वर्ड, चैप्टर 18 का जो 66 है, वो यही तो है ना। वहां भी आएंगे, पर हम्म, पहले भगवान ने डिफाइन किया था, आपको याद होगा चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में भगवान ने डिफाइन किया था कि देर आर 3 काइंड ऑफ कर्मस। क्या क्या कहा था? सुकर्म, विकर्म और अकर्म, है ना? इस पे डिस्कशन भी हुआ था काफी। हम्म, सुकर्म और कर्म इज सेम थिंग, व्हेन दे से कर्म मीन सुकर्म, राइट? सुकर्म या कर्म, दे आर एक्शंस एज पर द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, हम्म, actions as per the prescribed duties, and where these duties are prescribed, they are prescribed in the scriptures. हमारे शास्त्र के अंदर ये ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड है। सो इफ वी आर एक्टिंग एज पर दैट, दैट इज कॉल्ड सुकर्म। विकर्म क्या है? विकर्म, विकर्म आर दोज एक्शंस which are performed through the misuse of freedom। जो हमें फ्रीडम मिली हुई है, इसको हम लूजली फ्री विल बोल देते हैं, पर हर्ष ने एक बार एक्सप्लेन किया था कि फ्री विल का असली मतलब क्या है। तो आई विल नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ। बट जो भी हमें फ्रीडम मिली हुई है, जब हम उसका मिसयूज करके कोई काम करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ कर्म इज विकर्म। एंड अकर्म इज दोज एक्शंस which free you from the cycle of birth and death. That is why in Gita, Bhagavan had recommended that we should do karma in such a way that they become अकर्म। मतलब कर्म कर भी रहे हो,
लेकिन वो कर्म की श्रेणी में नहीं आ रहा। वो इस तरह से कर रहे हो, इस कॉन्शियसनेस में कर रहे हो कि वो सब जैसे मेरे लिए कर रहे हो तुम, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उसके, मुझको अर्पण करके कर रहे हो। कृष्ण अर्पणमस्तु। हम्म। जब उस तरह से हम कर्म करते हैं, उस कॉन्शियसनेस में सेट होके कर्म करते हैं, तो उन कर्मों के बंधन नहीं बंधते। पर उसके लिए हमको क्या होना पड़ता है? निष्कर्म होना पड़ता है। निष्कर्म कौन सी निष्काम स्टेट भाव है? से काम करना है। हाँ। निष्कर्म स्टेट है जिसमें हमें जो प्रकृति के तीन मोड्स हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से ऊपर उठकर जब हम काम करते हैं, हम्म। स्पिरिचुअल स्टेट में जब हम काम करते हैं, तो ये कर्म बंधन नहीं बनते। ये जो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल है, यही कर्म बंधन है। कर्म बंधन को अगर हम छोटा सा डिफिनेशन दें, तो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, transmigration of soul means after every death, soul is migrating to another species. That could be a human species, that could be a नॉन animal ह्यूमन। species, that could be a plant species, that could be any species. So, but according to karma, this transmigration is taking place to another species. So this process of transmigration is basically कर्म बंधन. So जब हम नैष्कर्म में होके, यानी कि सतगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ के स्पिरिचुअलिटी में सेट होके जब हम कार्य करते हैं, तो उसके बंधन नहीं बनते। दैट मीन्स व्हेन वी आर acting as per the Ishavasha principle, as defined, हम्म। as explained in verse 1, follow that, then हमारे कर्म बंधन नहीं बंधेंगे। एंड कर्म बंधन नहीं बंधेंगे, then we can aspire to live, if we want to, for hundreds of years. That means we are already kind of liberated. We can, जीवन मुक्त हैं हम एक तरीके से। वी कैन लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इफ वी वांट टू। ठीक है। हम्म। जस्ट वन इंफॉर्मेशन फॉर एवरीबॉडी। ये जो मेरे पे जो है गीता, उस गीता भवन वालों का है, गीता प्रेस वालों का ईशानो सिद्ध, इसमें जो वो उसकी दे रहा है हिंदी में ही, वो गीता के कौन से श्लोक उनकी भी साथ साथ नंबर लिखे हुआ है, उससे मतलब डिफरेंस देता है वो गीता का, यही चीज हाँ, गीता के वहाँ। आई डोंट नो अदर नहीं नहीं, पब्लिक। बिल्कुल देते हैं इसके एक्चुअली अंदर अशोक, जो एक बार मैं वहां गया तो उसकी वेबसाइट में तो ये ईशावासा वाली किताब आई नहीं। कौन सी? ये जो ईशावासा उपनिषद है ना, या जो बहुत सी किताबें जो है वो बैकलॉग में है वो। नहीं, ईशा आदि नौ उपनिषद, नहीं नहीं, ये वाली किताब है ना। ये नौ उपनिषद है इसमें। भेजो जरा ये मुझे यार इसका वो, फिर मैं ढूंढता हूँ। चलो मैं फोटो फोटो लेके भेज देता हूँ। ये है ईशा, इसमें जो के है लिए बेस्ट है। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा, ये तो है ही सब ग्रंथ बड़े बढ़िया। आई नो आई नो। अगर छोटी सी एक बुकलेट फॉर्म में इसे देखना है, तो आप इस्कॉन की देख लो। बिल्कुल पतली सी है, छोटी सी है, हाँ इजी टू हाँ, एक्वायर, वो एंड उसमें, दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू दिस। या नो वो जो है इंडिविजुअल उपनिषद के ऊपर है, बट ये इसमें नौ है ना उपनिषद। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, ये कर देना मुझे। हाँ, इस बुक का क्या ये नाम है जो इस्कॉन की है? ईशावास्य उपनिषद, अच्छा अच्छा। ओके। ईशोपनिषद है एक्चुअली उसका नाम। हम्म। ईशोपनिषद। तो जैसे आपने कहा अभी अशोक, रेफरेंस की बात, सो आई एम गिविंग यू दैट रेफरेंस कि जो हमारे चैप्टर 18 के 2.5 वर्ष हैं, 56, 57 एंड 58.5, हम्म। 2.5 वर्ष हैं, विच आर सेइंग दिस सेम थिंग। या तो 18.15.6 जो है, उसमें कहते हैं भगवान कि दो एंगेज्ड इन ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज,
my devotees reach me because they are doing it with my grace and mercy. They achieve me, although doing all kind of activities. That means even while they are involved in material activities, they achieve me. That is said in 18.56. Then 18.57 he is saying, in all the activities, just depend on me in your mind. मतलब किसी और का आसरा शरण कुछ मत लो. For all the activities, just depend on me. भगवान कह रहे in your mind. जिसको हम सिंपल शब्द में कहते हैं प्रभु तेरा ही सहारा. वैसे तो हम बिल्कुल सिंपल उसमें ही कह देते हैं, बट देयर इज अ डीपर मीनिंग टू दैट कि हम सब कुछ भगवान को ही माने. वही सब चीज का करने वाला है, नियामक है, वही कंट्रोलर है, वही ओनर है, सब कुछ वही है. हम तो किराएदार हैं बेसिकली. इंस्ट्रूमेंट है ना, हम तो नहीं एक्चुअली Our कर रहे हैं. existence here is like a tenant, not like a owner. A place has been given to us, a space has been created for us to spend some time here. And we have to spend that time like a tenant only. We should never consider that we own this space. The owner, in our mind, we have to be very, very sure and strong that the owner of everything, animate or inanimate, we are coming back to Isavasa principle as per verse 1. He is the owner of everything. And we have only a quota. We have only a quota. We should be very happy and live as per that quota. And if we are able to do this simple thing, sounds very simple, but probably the most difficult thing to do, then we will reach him, basically. And in 18.58, that half shlok, he is saying, keeping me in your mind, you will cross all material problems. That means whatever even material problems we are facing, we will cross them easily. जिसको हर्ष ने एक बार एक्सप्लेन किया था, भव सागर से तरना. ये भव सागर जो है, we will cross this ocean easily. Easily means we will not be in great trouble. So now summarizing this, basically, एक तो चीज इसमें आई कि ड्यू टू अवर कर्म बंधन वी आर बोर्न अंडर डिफरेंट स्पेशीज इन लाइफ. एंड in Kali, basically, we are doing sinful activities. Second, human life is special, as we all know, because in this human life only we get a chance to get out of this cycle of birth and death. So we should consider ourselves lucky that we are in this human species form right now, because this is the only form in which we can do karma in such a way that they are in the shreni of akarma, and in this spiritual way we can try to get out of the uh, birth and death cycle. That means we find liberation. Now all kind of karmas are basically binding, but we have to do them in such a way that all those karmas are God centered. They are dovetailed. They are dovetailed to God. So all the karmas are God centered, right? And then it's better to live a short life cycle with the Isha principle rather than a very long life of godlessness.
You can have a long life of godlessness. It's of no use. But even if your life is short, but it is followed as per the Isha principle, it is better. And in Bhagavad Gita, second chapter, 40th verse, 2.40, Bhagavan is also assuring that a little advancement in God centered activities saves one from big dangers. यानी कि अगर भगवान को बीच में रख के अगर हम अपनी एक्टिविटी करते हैं, हाजिर नाजिर जान के, तो कहते हैं ना, हर चीज में मन से, तो दैट विल सेव अस. That one step or few steps in the spiritual direction will save us from bigger dangers. उसमें कह रहे हैं कि even half finished activities, God centered activities, even if they are not completely fulfilled, even they are half fulfilled, they are great. At least they are guaranteeing the next life as humans. And the advantage, as I just said, the advantage of having the human life is that this is the only life form in which we can act to find liberation. Find liberation. Now, point comes that how to exercise this God-centered activities. So you have to start, if you have not already into it, if you have to, let's say, begin today, then there are small actions. It is not a big action today, huge action today. It always starts in bits and pieces. So the small actions which are recommended by the Shastra is like doing very small things. For example, reading a few pages of Bhagavad Gita every day. Few pages. Need not be in one sequence, but if it is in sequence, it is always better. But reading them, a few shlokas, and trying to understand their meaning, you know, doing some Nam Jap. Nam Jap, we all know what is Nam Jap. So, Bhagwan ke Naam ka Jap, right? And have Shukrana, have gratitude. Have gratitude towards whatever blessings are in our life. I mean, this expression of that gratitude. And simple things like Bhagwan ko bhog lagana, something. These are very simple things which we can do in everyday life as a beginning point. If we are not already into it, I'm sure some of us are already doing it in one way or the other. And last भक्ति भक्ति प्रधान कर्म। Bhakti Pradhan Kar. Yes. पे कर्म करने के ना कई तरीके होते हैं ना, ये जो है ये भक्ति प्रधान कर्म है। तो भक्ति प्रधान कर्म के लिए जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो है दादा पांडुरंग शास्त्री के द्वारा चलाया गया स्वाध्याय। स्वाध्याय ग्रुप जो है वो अभी तो दादा पांडुरंग शास्त्री नहीं रहे, उनके कुछ आपका बॉम्बे बेसिक वाले प्रिंसिपल्स हैं उनके। तो एक प्रिंसिपल जिसको उन्होंने काफी जिस पे जोर दिया है और करते हैं वो है कि आप कुछ समय के लिए जो भी कर्म करते हैं उसमें से स्वयं को बाहर निकालते हैं। यानी कैसे, जैसे हम करते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं जीवन में नॉर्मली उसके सेंटर में हम होते हैं राइट और बाकी हम काम कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि थोड़ी टाइम के लिए, चाहे वो 1 घंटा हो, 1 हफ्ते के अंदर आप उस 1 घंटे में स्वयं को बाहर निकाल दें सेंटर में से और भगवान को वहां रख दें। और इस घंटे में जो भी आप काम करेंगे
उसमें आपने मैंने किया है या मैं कर रहा हूँ या मेरे लिए है, ये सब भाव को छोड़ दें। तो जो सिंपल टर्म्स के अंदर जब ये काम किए जाते हैं, तो उनमें से एक काम को जिसको भक्ति फेरी बोलते हैं, कि आप सुबह उठ के, जैसे मान लीजिए कि वो तो खैर जाते हैं लोग, गांव में जाते हैं लोग बाग, बट अगर आप गांव में नहीं जा भी सकते हैं, तभी 15 मिनट 10 मिनट के लिए आप सिर्फ नमस्कार करते हैं सबको। मेरा नहीं है, भगवान का समय है, मैं सिर्फ नमस्कार कर। उसके साथ में जो उन्होंने आगे किया था, वो छोटी सी मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, तो थोड़ा और क्लैरिटी उसमें आ जाएगी। शायद ही हमने पहले भी बात की होगी। और ये राम विनोद जी तो इसको ज़्यादा वो कर सकते हैं एक्सप्लोर, क्योंकि वो उसी एरिया में है मुंबई वगैरह में। तो ये जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे, तो मछुआरों की जो लाइफ रहा करती थी, अब तो मुझे नहीं पता, काफ़ी समय से मैं देखा नहीं। वो ये होती थी कि वो सारा दिन तो वो मेहनत करते थे, वो फिशिंग बोट के ऊपर जाते थे वो, और बेसिकली उनको एक काम दिया जाता था एज ए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, के डेली डेली वेजेस के ऊपर। वो सारा दिन फिशिंग करके आते थे, शाम को जो भी पैसे उसको मिलते थे वो लेके जाते थे। और घर में उनका काम क्या था कि वो देशी शराब पीते थे, बीवी से लड़ते थे, बच्चों को पिटाई करते थे, आपस में झगड़े करते थे, और बड़ी ही गलत गंदी हालत में रहते थे। घर गंदा है सब, मतलब घर तो आप जानते हैं किस तरह के होते थे वो। तो जब उन लोगों ने ये उस सोसाइटी के अंदर ये उन्होंने जब ये शुरू किया कि भाई 1 घंटे के लिए हम भगवान को बीच में रखेंगे और स्वयं को वहां से निकाल लेंगे, तो कुछ लोगों ने वो 1 घंटा एज ए वॉलंटियर, जिसको कहना चाहिए आज की भाषा में, काम करना शुरू किया। तो उस 1 घंटे में अब जो जो वो तो मछली पकड़ रहे हैं, तो 1 घंटे में मछली पकड़ी गई, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ, अब उसके उस प्रॉफिट के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो भगवान का है। तो जब उन्होंने कहा कि ये भगवान का है, तो इसका उपयोग कैसे किया जाए, तो फिर उसका उपयोग किया गया। तो उपयोग भी वो सोसाइटी के भले के लिए ही हुआ। बट इसका एक जो धीरे धीरे जो इसी आगे बढ़ी बात, तो ऐसे हो गया कि लोगों ने एक एक दिन जो था वो पूरा भगवान के नाम देना शुरू कर। और उसके बाद में जब उनको उससे जो इनकम हुई, उस इनकम से उन्होंने सोसाइटी के नाम से फिशिंग बोट्स खरीदी। और उन फिशिंग बोट से खरीद के उसके ऊपर वो सिर्फ वही लोग जाते थे जो इस तरह की वो भक्ति प्रदान कर्म करते थे। तो उसके करते करते उन्होंने 18 बोट्स खरीद ली। उसके बाद में उन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर सफाई का अभियान शुरू किया और पढ़ाई का अभियान शुरू किया। और फिर उनकी कम्युनिटी में से जब एक बच्चा बड़ा होकर के टीचर बन गया और उसी कम्युनिटी में आके वो पढ़ाने लगा, तो उन्होंने इसको एक बहुत बड़ी सक्सेस मानी। इस तरह से गांव के गांव चेंज हुए, ये हुए हैं। मतलब आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा, रामिनो जी, तो बताइएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें हुई हैं। बट उनका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो ये था कि भक्ति प्रधान कर्म। और भक्ति प्रधान कर्म जो है, उसको करना इतना मुश्किल नहीं है, हम लोग भी अपनी लाइफ में ही कर सकते हैं। हम कहें कि भैया इस 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए या एक दिन के लिए जो भी मैं करूँगा, उसमें मैं नहीं हूँ बीच में, करूँगा तो वही जो मैं नॉर्मल करता हूँ, काम तो वही करूँगा, सारा दिन दिनचर्या में जो करता हूँ वही करूँगा। मगर मैं प्रधान नहीं हूँ उसमें, प्रधान उसमें प्रभु है। इसलिए उस कर्म का जो भी फल होगा वो मेरा फल नहीं है, भगवान का है। अच्छा होगा तब भी भगवान का है, और अगर अच्छा नहीं आएगा तब भी भगवान का है।
तो ना तो उससे मुझे दुख मिलेगा ना मुझे उससे सुख मिलेगा, सिर्फ भगवान के नाम ही छोड़ूंगा। तो ये 1 घंटा भक्ति प्रधान कर्म जो करते हैं ना जब ये, तो धीरे धीरे इसको जीवन में अगर पूरी तरह उतारे तो इस पर्टिकुलर प्रणाली के अंदर भक्ति प्रधान कर्म जो है वो आपके जीवन में पूरी तरह आ सकता है। और इसकी शुरुआत इसी तरह होती है, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। घर में आप चाय बना रहे हैं मान लीजिए, उस वक्त आपने कहा ये बस ये चाय जो मैं बना रहा हूँ मैं पीऊंगा जरूर मैं इसको, मगर ये पूरा कर्म जो कर रहा हूँ इसमें मैं नहीं हूँ, भगवान है बस। इतना करके चल लीजिए। किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, कोई कोई भी इस तरह के घर के जो काम होते हैं हम कर रहे हैं, उसे कह दीजिए कि भाई ये भक्ति प्रधान कर्म है, ये इसमें मैं करने वाला नहीं हूँ, ये सब प्रभु है, प्रभु का ही काम है। तो ये इस तरह से जीवन के अंदर जिन लोगों का भक्ति के साथ में टेंडेंसीज होती हैं, वो इस भक्ति को भक्ति कर्म, भक्ति प्रधान कर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब तक भक्ति को भक्ति प्रधान कर्म में कन्वर्ट ना किया जाए तब तक भक्ति इस संसार के अंदर आपके लिए काम नहीं कर पाती। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए जाएं तो बात अलग हो जाती है, बट अगर संसार में कर्म करने हैं और भक्ति प्रधान कर्म करने हैं तो ये तरीका उसका माना जाता है। एक तरीका ये है। सो ट्राई कीजिए, कोई नॉर्मल दिनचर्या, मतलब देर इज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे 1 घंटे के लिए बैठेंगे, आप इसको भक्ति प्रदान कर्म समझ लीजिए। हम जो भी कर रहे हैं ये भगवान के नाम से है, जो मिलेगा ठीक है, जो नहीं मिलेगा वो भी ठीक है। यही भक्ति प्रदान कर्म हो जाता है। जब आप किसी के साथ में वार्तालाप भी करते हैं, या कोई घर में गेस्ट आया हुआ है, घर में अपने घर के काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सो एनीवे, सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग ए भक्ति प्रधान कर्म। अपने जीवन के अंदर रियली उसको ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते So I'll close with one sentence basically. He, somebody has said that being anxious is an animalistic activity. Being anxious, we are always so anxious, huh? So it's a kind of a, being anxious is an animalistic activity because we do not keep Bhagwan at the center of our existence. If we try and keep Bhagwan at the center of our existence, the first outcome we will start seeing is the anxiousness will Go go, away. go down first. Yeah. You can feel it. ये वही चीज है जो अर्श ने भी कहा कि उतने पीरियड के लिए अपने को चीजों से अलग कर ले रहे हैं एक तरीके से। जब हम चीज चीज से अपने को अलग कर लेते हैं तो एंक्शसनेस अपने आप ही कम हो जाती है। So that's it about this verse. नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। Any immediate questions? आज के युग में बहुत सारे ऐसे हमारे प्रेजेंट टाइम के गुरु हैं जो डिफरेंट तरीकों से इस तरह के कामों को कैसे जीवन में लाया जाए उसके बारे में बताते हैं। तो सिर्फ ये है कि थोड़ा उनका एक्सपोजर हमें चाहिए होता है कई बार, उसके प्रिंसिपल समझने की बात होती है। अम, 2 तरीके हैं ना, एक तो ये है कि भाई गुरु ने बोला ऐसे करो तो करना शुरू हो जाओ, और दूसरा ये है कि भाई जो ज्ञान प्रदान व्यक्ति की टेंडेंसी होती है वो कहता है इसके प्रिंसिपल को मैं समझूं पहले, फिर मैं करूँगा। तो फिर ज्ञान प्रदान की बात आती है, तो किसी दिन बात होगी तो ज्ञान प्रदान कर्म की भी बात होगी। वो भी वैसे भगवत गीता में सभी है, हम्म। वो उसमें ज्ञान प्रदान कर्म की बात भी है। वो जो
सारा है वो दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा जब इस तरह से करेंगे। हर्ष, ऐसा नहीं है कि ये 3 मार्ग जो बताए गए हैं हमारे यहाँ किसी भी चाहे उपनिषद हो या भगवत गीता में, कर्म, ज्ञान और भक्ति, अंत में जो है वो जो बाकी 2 मार्ग हैं भक्ति कर्म, वो ज्ञान पे ही आके रुकेंगे, तभी आप ट्रांसेंडेंट कर पाएंगे अपने हाँ, आप को। इवेंचुअली तो वहीं पहुंचेंगे। बस ये हाँ। रास्ता है, ट्रेन कौन सी हाँ। पकड़नी है ये है। एक आदमी ट्रेन पे बैठा जाना है, एक उसी बस में जंक्शन पे बैठा है। है, एक टैक्सी में बैठा है। जा सब उधर ही रहे हैं, बट वो है कि भाई कौन सी ट्रेन आपने पकड़नी है। तो जो करेक्ट। आपको कंफर्टेबल है आप वो वाली ट्रेन पकड़ें। वैसे मुझे ये लगता है कि क्योंकि हम इस संसार में इंटेंगल्ड हैं, तो हम जो है कर्म के मार्ग से ही वहां पहुंचेंगे या पहुंच सकते हैं। क्योंकि इधर उधर और जाएंगे तो फिर हम कंफ्यूज रहते हैं फिर, या भटक जाते हैं, क्योंकि डेली एक्टिविटी तो इसी संसार में रहते हुए करना है। तो मेरे लिए तो अपना पर्सनल चैलेंज ये रहता है, हाउ डू आई परफॉर्म माई ड्यूटीज while entangled in this संसारिक एक्टिविटीज, राइट, इंक्लूडिंग फैमिली, फ्रेंड्स। और वो कंटिन्यूअस लर्निंग है वो, फॉर अपलिफ्टमेंट, जिससे हर हर स्टेज में ऊपर चलते जाते हो। 20-25 साल हो गए अब तो करीब करीब। हाँ, तो तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो देखिए ना, एक तो कॉमन कर्म है ना, जो जिसमें लिप्त कर्म है जो, हाँ। उसमें तो संसार के अंदर आप रिएक्शन करते हैं बेसिकली, है ना। जो भी आपकी सिचुएशंस होती हैं और जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं उन्हीं को रिएक्ट करते हैं आप बैठे। दूसरा, फिर उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाता है तो आदमी तो फिर जब ये आध्यात्म की तरफ जाएगा, या तो उस वक्त उसको लगता है कि मैं क्या करूं, तो फिर हम ये भक्ति प्रधान और कर्म प्रधान, ये दोनों कर्मों की बात है। तो भक्ति प्रधान की बात तो आज हुई है, कर्म प्रधान अपना ज्ञान प्रधान की बात जो है हम्म। वो बात भगवत गीता में भी हुई है और हम उसको भी करते हैं। तो ये जो लिप्त कर्म है, जो नॉर्मल डे टू डे में हम लोग संसार में पूरी तरह से बिजी रह जाते हैं और ये जिंदगी निकल जाती है, हम्म। देखते देखते ऐसे लगता है कि अरे क्या हुआ, 70 साल निकल गए हैं और पता नहीं लगा कि कैसे चले गए। तो वो सारे लिप्त कर्म के अंदर बिजी रहते हैं ना, तो पता नहीं लगता। बट जैसे ही ये विचार आता है कि भाई इससे आगे भी कुछ करना चाहिए या होना चाहिए या है या क्या है, तो फिर हम जाते हैं। तो अभी हम कर्म की बात है तो फिर इसमें भक्ति प्रधान और कर्म प्रधान, ज्ञान प्रधान, ये कर्मों की हम बात करते हैं। बट इनको बात ये हो जाती है कई बार कि मैंने देखा है जनरली इतने कॉम्प्लेक्स और इतनी थियोरेटिकल हो जाती हैं बातें कि आदमी सुन लेता है, पढ़ लेता है और कहता है भाई अच्छा तो है बट मुझसे हो नहीं सकता, हाँ। मैं इसे करूं कैसे। तो वो थोड़ा सा उसको जो कन्वर्ट करना है ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के अंदर, लाइफ के अंदर, और वो भी इतना आसानी से करना है चाहिए कि इतना आसान हो जाए कि वो व्यक्ति उसको कर रहे और उसे लगे कि ये तो करने में मुझे कोई एफर्ट भी नहीं लगी, एफर्टलेसली हो गई। तो इसके लिए मैं ये आज एग्जांपल इसका दिया था मैंने, ये स्वाध्याय के अंदर किस तरह से वो प्रिंसिपल उन्होंने बनाए हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोग किस तरह से उसको करेंगे, कुछ लोग किसी और तरह से करेंगे, भाव होंगे, चेंज होंगे, दुनिया है, हर तरह के रंग मिलेंगे। बट जो प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपल बहुत उसका भक्ति प्रधान का है। हर्ष जी, हाँ जी। थोड़ा सा है हाँ हाँ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नहीं नहीं। क्विकली। हाँ। हाँ जी हाँ जी। नहीं, ये बहुत सुंदर, जो भी कुछ आज हमारे दोस्तों ने बताया, मतलब बहुत कुछ सुंदर है। जन अपनी अपनी लाइफ में लाना चाहिए, लाते हैं और उससे शांति मिलती है, वो सब है। लेकिन मेरा भी बेसिक क्वेश्चन जो आंसर नहीं होता कि जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहते हैं, वो मेरी समझ नहीं आता कि क्यों चाहते हैं, क्या कष्ट है, वो अभी तक मेरी समझ नहीं आया। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे उसको मुझे कन्विंस कर दें या बता दें। बहुत सुंदर है हर कुछ, उस राह पर चलना, भक्ति अब राह पर चलना, अच्छे कर्म करना, सब कुछ बहुत सुंदर है।
लेकिन ये बोलना कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाए, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। बिल्कुल। तो आप ओके। उस ये जो बफे लगा हुआ है ना, इसमें डिफरेंट डिशेस हैं। आप ये वाली डिश को मत डालिए अपनी प्लेट में। नहीं, डिशेस तो बहुत हैं, वो सब डिशेस समझ में आ रही हैं, लेकिन फाइनल टारगेट क्या है? फाइनल टारगेट अगर जन्म मृत्यु से छुटकारा ही पाना है, वो मेरी नहीं, समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों। फाइनल टारगेट तो ऐसा नहीं है। फाइनल क्या टारगेट है तो मतलब सिर्फ फाइनल टारगेट अपने क्या है मतलब? अपने आप को मिलना है। फाइनल टारगेट अपने आप को मिलना मिलना है, अपने आप मिलना को है। ही मिलना है। अब वही है फाइनल टारगेट। या ये भी समझ में आता है। बाकी तो रास्ते हैं सिर्फ। वो किसी व्यक्ति को जन्म मरण की बात से आता है। अब जन्म मरण की बात से पूरा पूरा ये वो अ, उसको लेते हुए, मतलब उस चीज को लेते हुए ये पूरा बहुत धर्म बन गया। और उसके करेक्ट। प्रिंसिपल आपको मालूम है ना, उसका एक प्रिंसिपल है कि दुख है। या यहाँ करेक्ट। हमारे शास्त्र में बोलते हैं कि भाई दुख जो है उस नाम की कोई चीज नहीं होती है। ब्लेसिंग इज ब्लिस, ब्लिस इज योर नेचर। मगर वो बोला, उसने बोला दुख है, दुख रियल है। तो हर्ष भाई, हाँ, ऐसे प्रश्न आते मतलब ये चलता रहेगा। मे बी हाँ। इन द प्रोसेस ऑफ आवर लर्निंग समवेयर आई मे गेट आंसर फॉर दिस, बट अभी नहीं, तक मुझे ये बॉदर करता है। हाँ, नहीं, ठीक है। देखिए, आपकी जो वाइब्रेशनल स्ट्रेंथ है उसके अंदर ये मैच नहीं करता, इसलिए आपको ये सूट नहीं करेगा। और वह ये, और सिर्फ आपकी बात नहीं है, मेरे से भी अगर पूछेगा जन्म मरण की बात, मुझे नहीं सूट करता ये प्रिंसिपल कि भाई जन्म मरण से मुक्ति ले लो, मुझे नहीं सूट करता। मुक्ति लेने का क्या मतलब? कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप से मिलने की बात। या मुक्ति तो अपने आप हो जाएगी। आप या अपने मुक, को अच्छी तरह से मुक्ति, समझने की। हाँ, मुक्ति जो है वो तो इसका साइड इफेक्ट है। जब आपने स्वयं को रियलाइज कर लिया, सेल्फ को जान लिया, सेल्फ आप बन रियलाइजेशन गए, दैट इज। तो बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो ओके सर, इसलिए, इस पे आगे चलेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, तो इसलिए मतलब मैं सिर्फ यही कहता हूँ, कई बार जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं ना कि बाजार जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो उसकी सब्जी जो होती है उसमें से चुन चुन के पीसेस निकालते हैं आप, और जो अच्छे होते हैं वो वाले। बस यही यही रखिए आप। या करेक्ट। हर्ष जी, एक और है हाँ जी। क्वेश्चन है। हाँ जैसे जी। रावण था, हाँ जी। रावण वेल एजुकेटेड, वेल वर्स्ड, सब कुछ था। उसको अपने आप का बहुत अंदाजा था क्या है क्या नहीं है वो। तो वो अपने आप को आपकी हिसाब से क्यों नहीं मिल सका अपने आप क्योंकि उसको अपने से मिलना नहीं था। वो अपने आप को जो समझता था, वो समझता था वही सत्य है। को? नहीं, वो तो समझता था, उसके हिसाब से तो वो ठीक था। पर आप जैसे, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ जी। कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो अपने आप को समझता नहीं था वो, मतलब कैसे नहीं समझता था? देखिए ना, एक तो होता ना कि भाई एक आध्यात्मिक आपकी क्वेस्ट होती है, एक गोल होता है कि भाई मैं कौन हूँ। और एक होता है कि मैं जो हूँ, जो मैंने पाया है, उससे मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ। ये आध्यात्मिक तो आपने कह दिया, आध्यात्मिक वर्ड, उसको आध्यात्मिक से कोई मतलब नहीं है। बट उसको, रावण को नहीं तो है कोई वो मतलब। अपने आप को तो समझता है ना। ले, एक मिनट मेरी बात सुने ना। हाँ चलो ठीक है। तो जो मैं पाया हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, वो मैं हूँ। जब ये हम समझना शुरू हो जाते हैं, तो मैं का जो रूप है वो अलग हो जाता है। वो अहंकारी रूप बन जाता है। तो रावण के साथ में, जो उसके ज्ञान के साथ में, पराकाष्ठा के साथ में भी ये प्रॉब्लम थी कि वो कहता था कि मैं ज्ञानी हूँ, ये मैं पावरफुल हूँ, ये मैंने शक्तियां प्राप्त की हैं, ये मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये मैं हूँ, ये कोई मैं नहीं, हूँ।
से मैं बन जाता हूँ। अगर 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 बाहर की तरफ से हम देखें, जैसे कोई टीचर है या जिन्होंने बहुत वेल्थ क्रिएट की है सब, तो ये करने से तो उसने ही किया है ना, तो ही हैड सम guts to do that, or let's say intelligence to do that, बट सम वो अपने आप को किया ना, तो वो मैं इसको रियली समझ नहीं कोई, जैसे अभी राम जोई ने कहा कि मरण अच्छा, आई थिंक से, वी आर टेकिंग द डिस्कशन आउट ऑफ टुडे प्रोग्राम। मेरे ख्याल ये डिस्कशन जो होती है ना, इसी ये डिस्कशन, डिस्कशन को आदमी समझता है। नो नो, इस डिस्कशन को किसी दिन डिबेट कर कर रख लो। जो आज का प्रोग्राम है उसको लेट्स मूव ऑन। पर बट जो ड्राइव है ना समझने की, जो अब है ना, जब आप डिस्कस करेंगे उस टाइम को इंटरेस्ट ही नहीं होगा। भी 1 मिनट है अशोक भाई, हर्ष जी को बोलने दीजिए, देखिए कुछ अगर इनकी तृप्ति कर सकते हैं वो। वो देखिए, ऐसा है कि ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी के अंदर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड है। तो एक स्टेट ऑफ माइंड में ये भी है कि भाई मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मेरी मेहनत से ही हुआ है, मैं अपनी विल पावर से करता हूँ। ये एक स्टेट है। क्या ये अल्टीमेट स्टेट है? ऐसा सत्य नहीं है। उस स्टेट के अंदर भी व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति उस स्टेट में अच्छा है। मतलब इज नॉट कि भाई वो कोई वो आउट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट है, वो है एक नॉर्मल स्टेट है ये। तो जब क्या आप, हम, ये तो अपोजिट हो गया जो आपने समझाया था पहले। हाँ, तो इसके आगे की स्टेट भी होती है ना, जर्नी है ये। मैं ये कहने का मेरा मकसद ये है कि जैसे जो स्पेक्ट्रम होता है ना उसके अंदर, तो उसके स्टेजेस हैं डिफरेंट। डिफरेंट स्टेजेस के अंदर एक स्टेज ऐसी है जिसके अंदर मैं कुछ नहीं हुआ था। एक स्टेज होती है जो पूरी तामसिक हो जाती है, एक स्टेज होती है जो पूरी राजसिक हो जाती है, एक स्टेज होती है जो पूरी सात्विक हो जाती है। अभी जब वो तामसिक स्टेज हो जाती है तो सब कुछ झूठ हो जाता है, मिथ्या हो जाता है, सत्य जो है वो असत्य बन जाता है। जब राजसिक स्टेट आ जाती है तो उसमें मैं का भाव जो है वो बहुत बढ़ जाता है। मैं ही करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, जो भी मिलता है मुझे मेरे कर्म से ही, मैं ही हूँ जो कर। फिर सात्विक आती है। सात्विक आती है तो उसमें मैं का भाव कम होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर वो कहता है कि भाई मैं जो हूँ वो नहीं करता हूँ, करने वाला कुछ और है, सत्य कुछ और है, नेचर कर रहा है, सृष्टि में जो चल रहा है वो हो रहा है। वो सात्विक स्टेज में आ जाता है। मगर इन तीनों स्टेजों के बाद में जो आदमी व्यक्ति जाता है, उन उस व्यक्ति को उस स्टेज पे पहुंचने के बाद में वो कहता है कि ये सारा का सारा जो माया चल रही है ये चलती ही रहे। ना मैं हूँ, ना मैं था, मैं ही हूँ, मैं ही था, दोनों सत्य हो जाते हैं। तो गुलाटी ये जी। स्टेजेस है। अगर हम सत्व की जगह बैठ के रजस को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर सकेंगे। अगर हम रजस में बैठ के सत्व को समझने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। तो स्टेजेस डिफरेंट हैं। रावण की स्टेज के अंदर रजस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, अत्यधिक रजस है। नहीं हर्ष जी, ये मैंने नाम तो रावण का लिया था, क्वेश्चन तो मेरा अपना ही था कि मैं उस स्टेज में हूँ कि नहीं हूँ, जो तो आप अभी आपने तो, समझाया, तो ऐसा है ना, हमारे अंदर तो तीनों गुण है ना, सृष्टि के अंदर प्रकृति के अंदर गुण तो तीनों ही आने हैं। और अधिकतर रहता है कि हम अ, रजस के अंदर लगे रहते हैं। बट रजस में लगा रहना गलत नहीं है। सिर्फ ये कि रजस के जो एक्शन हैं वो तामसिक ज्ञान के साथ हो रहे हैं या सात्विक ज्ञान के साथ हो रहे हैं। तो जब हमारे एक्शन सात्विक ज्ञान के साथ में होना शुरू हो जाते हैं तो हम धीरे धीरे रजस से सत्व में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। जब तक हमारे तामसिक ज्ञान के साथ में होते हैं तब तक हम गलत काम करना शुरू हो जाते हैं। तो हम रजस और तमस के बीच में लगे रह जाते हैं। तो स्टेजेस तो सबकी हैं, किसी को वो ऐसे समझने की बात नहीं कि अच्छी है कि बुरी है। हम लोग कहते हैं ना कि कहाँ से शुरू करूँ, तो मुझे वहां से शुरू करो जहां आप हो। नहीं तो ठीक है, दिस थैंक यू। दिस इज वेयर आई एम। या तो जैसे जैसे अब हम लोग बात करते हैं ये तो थोड़ा बहुत हमारा सात्विक ज्ञान आ जाता है। तो जो जो रजस है, जो एक्शन है,
उसके अंदर सात्विक ज्ञान आने से वो एक्शन प्योर होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। हाँ, ठीक कहते हैं, मेरे को अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक। अरे गुलाटी जी, सबसे बढ़िया तमस का एग्जाम्पल हमारे यहाँ डीसी में बैठा हुआ है। तो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है वो। बस उसको कनाडा नहीं मिलने वाला। नहीं, वो उसको सब उसको बस उसको वही समझ में आता है जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, वही तो वो सोचता है ना। मेरे ख्याल में वो भी उसको पता है, ही इज जस्ट वाचिंग द रिएक्शंस। तो वो May I request now switch over to second part? करेक्ट करेक्ट, यस None, मैं वही none of कह us will रहा get satisfied. यस। वो 1 साल तो ऐसे करेगा, उसके बाद में देखो दुनिया का क्या होता है। सो 1 साल तो ऐसे ही करेगा जैसे कर रहा ठीक है, अभी मैं ये क्या रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, है? है। हाँ जी, Yeah. थैंक यू।